Hello students, good morning all of you. Dear students, hope you all fine and healthy and hope you all have completed your homework and you revised your chapters in summer vacation. Okay, dear students, today we are going to start the new chapter, that is synthetic fibers and plastic. Okay, dear students, today we will talk about the synthetic fibers and uses and properties of different synthetic fibers. Okay, now dear students, you have learned about the fibers. Okay, so what are fibers? Fibers that is used to make cloths and different materials. So fibers are of two types, natural and synthetic. Natural fibers obtained from plants and animals. You have learned about that the animal fibers are obtained from sheep, that is wool, and silk fiber is obtained from silk moth. Okay, now plant fibers, the fibers that are obtained from plants are jute, cotton. Okay, so these all are made for making different kinds of cloths and different materials. Okay, now another type of fibers are called as synthetic fibers. So synthetic fibers are the fibers that are made in laboratories by man. Okay, so synthetic fibers are made by chemical process. Okay, we can say it is the process of making fibers in laboratory by chemical means, by chemical products. Okay, so mainly the products that are used for making synthetic fibers are called as petrochemicals. Okay, now so man-made fibers are example like rayon, nylon, polyester, acrylic, etc. Okay, so these fibers are also used in making clothes, but mostly they are used to make different kinds of materials like bags, socks, parachute, different stuffs. Okay, now first talk about how the synthetic fibers, that is mainly fibers are how the fibers made up. So fibers are made up of monomers. Okay, what is monomer? Monomer is the small unit of synthetic fibers. Okay, so monomers are the small unit of synthetic fibers. Okay, and these thousands of monomers. What are monomers? Monomers are actually chemical materials. Okay, so thousands of monomers join together to form polymer. Okay, so one and another and so on monomers join one together and form polymer. Okay, and these polymers are used for making different kinds of materials. Okay, so you get it, monomers and polymers. Okay, so monomers are the small unit. Okay, polymers are made up of monomers. Okay, now up next is monomers can join together by two different ways. Okay, first monomers combine in a long chain. Okay, one by one. So this form linear polymer. Okay, if the polymer join together with cross linked. Okay, वन बाय वन अगर वो क्रॉस लिंक्ड जो है वो एक दूसरे से ज्वाइन करता है, सो दिस टाइप ऑफ monomers arrangement are called as linked, cross linked or linked polymer. Okay, so एक तो सीधा जा सकता है, so this form linear polymer, और एक जो है आपका क्रॉस बनाएगा. These are called as linked polymers. Okay, now polymers जो होते हैं, polymers can be synthetic or natural. Okay, so natural polymer fibers होंगे like wool and cotton, jute, silk, etc. Okay, and synthetic fibers जो होंगे that are made from chemical substances in lab. Okay, now the formation of polymer by the joining of monomers are called as polymerization. Okay, we can also say that the process of joining together of monomer
to form polymer is called polymerization. Okay, so polymerization के थ्रू क्या होते हैं, मोनोमर्स एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं. नाउ नेक्स्ट वन है, अगर हम नेचुरल फाइबर्स की बात करें, ठीक है, वैसे तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, सिंथेटिक फाइबर्स, ओनली सिंथेटिक फाइबर्स. ओके, सो जो पॉलीमर्स होते हैं वो सिंथेटिक भी होंगे और नेचुरल भी होते हैं. ठीक है, सो अगर नेचुरल फाइबर्स में हम बात कर रहे हैं जो पॉलीमर होते हैं, सो सेलुलोज इज द नेचुरल पॉलीमर. ओके, सेलुलोज इज मेड अप ऑफ स्मॉल मेड अप ऑफ मोनोमर्स एंड मोनोमर इज ग्लूकोज. ओके, so cellulose is a natural polymer and this cellulose polymer is made up of glucose that is called as monomer. Okay, clear? Now these fibers join together to form कि कॉटन, क्योंकि कॉटन जो होता है आपके वो नेचुरल फाइबर है एंड इसका जो पॉलीमर होगा वो क्या होगा, सेलुलोज होगा. ओके, एंड मोनोमर इज ग्लूकोज. क्लियर? नाउ वैसे ही हम अगर बात करें तो हमारी प्रोटीन, हमारे बॉडी में जो प्रोटीन होता है, ठीक है, यानी कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ एमिनो एसिड्स. सो प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड. ओके, सो प्रोटीन पॉलीमर है किसका, एमिनो एसिड का. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज की व्हाई वी नीड टू मेक पॉलीमर्स. ठीक है, पॉलीमर्स बनते हैं, पॉलीमर से फाइबर्स बनते हैं, फाइबर से फैब्रिक एंड फैब्रिक से क्लॉथ्स एंड डिफरेंट स्टफ्स बनेंगे. ओके, सो व्हाई वी नीड टू मेक पॉलीमर्स. पॉलीमर्स बनाने से क्या होते हैं, मोनोमर्स को ज्वाइन करने से क्या होगा, फर्स्ट इज की पॉलीमर्स डू नॉट कोरूड और रस्ट. ठीक है, पॉलीमर जो होते हैं वो कोरूड नहीं करेंगे, रस्ट भी नहीं होंगे. दे कैन बी प्रोड्यूस वेरियस कलर्स, हम उनको कलर भी कर सकते हैं. दे कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स. दे आर स्ट्रॉन्ग एंड दे आर इनएक्सपेंसिव. ओके, सो वो बहुत महंगे नहीं होते हैं, वो मजबूत होंगे, इसलिए हमें पॉलीमर्स बनाते हैं. ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात कर रहा है. नाउ दूसरी चीज ये है कि ये तो इसकी जो है जरूरत थी, इसका हम एडवांटेज कह सकते हैं. व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ मेकिंग पॉलीमर्स. पॉलीमर्स बनाने यानी कि सिंथेटिकली अगर हम पॉलीमर्स बना रहे हैं तो उसका क्या डिसएडवांटेज है. डिसएडवांटेज इज दैट कि इट कैन नॉट डिग्रेडेबल. ठीक है, डिग्रेड, ये डिग्रेड नहीं होगा. सो दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. सो जो पॉलीमर सिंथेटिक होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, विच मीन्स दे कैन नॉट डिग्रेड और डिकम्पोज बाई माइक्रोब्स लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया. सो फंगी एंड बैक्टीरिया का फंक्शन होता है, यू हैव लर्न इन प्रीवियस चैप्टर, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दे एक्ट एज अ क्लींजिंग एजेंट इन एनवायरमेंट. दे डिकम्पोज एंड डिग्रेड दी वी कैन से कि जो डेड एंड डेब्रिज होते हैं उनको वो डिकम्पोज करते हैं एंड फॉर्म्स कंपोस्ट एंड फर्टिलाइजर्स. सो द सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. दे कैन नॉट डिग्रेड बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो इससे क्या होगा कि दे कैन प्रोड्यूस वेरियस पॉइजनस गैसेस एंड दे पोल्यूट अवर इन्वायरमेंट. ठीक है, सो हमें क्या करना होता है कि हमें जो भी पॉलीमर्स हम यूज करते हैं उसको बहुत ही वाइजली यूज करना है. ठीक है, ताकि हमारे जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट ना हो. ना नेक्स्ट है, हम पढ़ते हैं आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. ठीक है, फाइबर्स कौन कौन से हैं, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक. ओके, सो फर्स्ट टॉक अबाउट रेयॉन. So dear students, rayon is also called as semi-synthetic fibers. Semi-synthetic fibers means that is semi-synthetic, मतलब थोड़ा सा इसमें नेचुरल कंपोनेंट है एंड थोड़ा आपका सिंथेटिक मटेरियल है. तो it is called as semi-synthetic fibers. Okay, now it is obtained from naturally occurring polymer called cellulose. तो ये cellulose से बनाया जाता है and cellulose is the pulp of cellulose is the wood pulp. ठीक है, जो कि हमें प्लांट से मिलता है सेलुलोज. सो इवन दो रेयॉन जो होगा इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल फाइबर, इट इज कंसिडर्ड अ सिंथेटिक फाइबर. हम तो देख रहे हैं कि वो सेलुलोज से बना होता है, बट फिर भी इसको हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं. क्यों? बिकॉज दिस इज बिकॉज सेलुलोज नीड्स एक्सटेंसिव केमिकल ट्रीटमेंट टू फॉर्म रेयॉन. ठीक है, तो अगर हम रेयॉन बना रहे हैं सेलुलोज से, रॉ मटेरियल जो है हमारा वो क्या है,
आपका नेचुरल मटेरियल है, दैट इज सेलुलोज। अब उस सेलुलोज को क्या करते हैं फैक्ट्री में, जहाँ पे इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है, उसमें सेलुलोज को क्या करते हैं केमिकली एक्सटेंस यानी को केमिकली ट्रीट किया जाता है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐड करके जो है फिर उससे आपका रेयॉन फैब्रिक बनाए जाते हैं। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ रेयॉन। रेयॉन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज की रेयॉन ड्रेप्स वेल, यानी कि इसको हम अच्छी तरह से पहन सकते हैं, ठीक है। इट इज गुड एब्जॉर्बेंट, यानी कि ये जो है हमारे जो वो होता है स्वेट वगैरह उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। इट डज नॉट श्रिंक, ठीक है। इट कैन इजिली डाइड इन वेरियस कलर्स, इट इज कूल टू वियर, इट हैज सिल्क लाइक अपीयरेंस, ठीक है। तो आपने देखा होगा, मतलब देखने में ये जो है लाइक कॉटन टाइप दिखता है, बट ये आपका कॉटन नहीं होता है, इसमें जो है आपका श्रिंक भी नहीं पड़ता है, और थोड़ा सा इसका जो अपीयरेंस होता है वो सिल्क नेचर का होता है, यानी कि थोड़ा सा ये शाइन करने वाला होगा, थोड़ा सा लस्ट्रस होता है, ठीक है। सो आप कभी जो है किसी प्रोडक्ट या फिर आप ऑनलाइन जो है शॉपिंग कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में आप देख लेना कि उसमें फैब्रिक मटेरियल क्या लिखा है। तो मोस्टली क्लॉथ जो होते हैं वो रेयॉन के बने होते हैं, ठीक है। रेयॉन आपके कॉटन से थोड़ा सा चीप होता है। नाउ एडवांटेज ऑफ रेयॉन, ये तो इसकी प्रॉपर्टीज थी, तो हम इनको इजीली जो है ड्रेप कर सकते हैं, इनको हम वेरियस कलर में डाई कर सकते हैं, एंड इट कैन नॉट श्रिंक, एंड इट इज कूल टू वियर, इसमें गर्मी भी नहीं लगेगी। जैसे कॉटन क्लॉथ में जो है आपको फील नहीं होता है, गर्मी फील नहीं होती, वैसे इसमें भी नहीं होगा। नाउ एडवांटेज क्या है, क्या इसको आपको क्या फायदा हो सकता है। सो पहली चीज कि इट इज चीपर, ठीक है, टू प्रोड्यूस एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। सो नेचुरल फाइबर जैसे कि कॉटन है, कॉटन के जो क्लॉथ्स बनते हैं उनको प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और ये थोड़ा आपका महंगे भी होते हैं, बट रेयॉन क्या होता है ये सस्ता है और ये जल्दी बन जाता है। नेक्स्ट, इट कैन बी इजिली मिक्सड विद अदर फाइबर्स लाइक कॉटन एंड वूल, ठीक है। दूसरे फाइबर से हम इसको मिक्स करके जो है क्लॉथ्स बना सकते हैं। नाउ ये हो गया आपका जो आपके रेयॉन था, ठीक है, उसका एडवांटेज। नाउ उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या चीजें रेयॉन से बना सकते हैं। सो इट इज यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग क्लॉथ, टेक्सटाइल जहाँ पे कपड़े वगैरह बनते हैं उस इंडस्ट्रीज में हम इनको वहाँ पे यूज किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस, यानी कि हम सूट सलवार शर्ट्स वगैरह है और आपके बेडशीट्स हैं, ये सब बनाई जाती हैं। एंड ऑल्सो इन मेकिंग कारपेट्स एंड बेडशीट्स, ठीक है, एंड इन मेकिंग बैंडेज, ठीक है, बैंडेज बनाने में भी रेयॉन का यूज किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका नायलॉन। सो नायलॉन जो है आपका इट वाज फर्स्ट फुली सिंथेटिक, क्योंकि रेयॉन जो था वो सिंथेटिक फाइबर है बट इट्स अ सेमी सिंथेटिक फाइबर, बट नायलॉन इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर, यानी टोटली इसमें कोई नेचुरल केमिकल नहीं है, ये टोटली आपके जो है आर्टिफिशियल यानी मैनमेड केमिकल से बनाया गया है। सो इट्स द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, इट वाज डेवलप्ड बाय द यूएस साइंटिस्ट वैलेस एच कैरोथर्स, ठीक है, वैलेस एच कैरोथर्स and his associates in 1930s. It was produced from coal, petrochemicals, coal, air, water and agriculture byproducts, ठीक है। तो ये जो है आपके केमिकल्स से बनाए जाते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मजबूत है, दैट इज हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, बहुत ज्यादा इसकी जो है आपकी मजबूती ज्यादा होती है। इट इज शाइनी एंड इलास्टिक, इट इज इजी टू वॉश, ठीक है, धोने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट कैन बी इजिली डाइड इन वेरियस कलर, इट रिटेन्स इट्स शेप, ठीक है। बाकी कपड़े क्या होते हैं यूज करते करते उनके फाइबर्स लूज हो जाते हैं, तो उनका शेप जो है मान लेते हैं अगर हमने छोटा लिया था तो वो और बड़े हो जाते हैं, बट इनका शेप जो है ये अपने शेप को रिटेन करते हैं, वैसे के वैसे ही रहते हैं। ओके, एंड इट इज इजी टू मेंटेन एज इट इज रिंकल फ्री, ठीक है, हम इसको आसानी से फोल्ड करके रख सकते हैं और जब भी यूज करना है इसको ओपन करेंगे क्योंकि ये रिंकल फ्री होते हैं, ठीक है। नाउ इट इज लॉन्ग लास्टिंग फाइबर फैब्रिक, ठीक है, ये काफी दिन तक चलने वाला चीज है, ठीक है। नाउ इसका यूज क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज करेंगे। फर्स्ट थिंग इज इन मेकिंग ड्रेसेस, ट्रैक सूट है, बेसिकली हम डेली वेयर सूट नहीं बनाते हैं इससे क्योंकि पूरी तरह से सिंथेटिक है, ठीक है। एंड
इसका मेनली यूज जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस लाइक ट्रैक सूट हो गया, सॉक्स है, स्विम वियर है, रेन कोट्स है, स्टॉकिंग्स है, शॉर्ट्स एक्सेट्रा बनाते हैं। ओके, दूसरी चीज की बेडशीट्स बना सकते हैं, कर्टन्स नायलॉन के बनाए जाते हैं, रोप्स हैं, पैराशूट, फिशिंग नेट, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, यानी डिफरेंट स्टफ जो हम डेली यूज करते हैं, रैकेट स्ट्रिंग्स है, टायर है, अम्ब्रेलाज हैं, ठीक है, ये सारे जो है आपके नायलॉन के बनाए जाते हैं। ओके, क्लियर। हम नायलॉन के डेली वेयर सूट्स नहीं बनाते हैं, बस स्पेशल क्लॉथ्स बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ होती है, इसकी टेंसाइल जो है काफी स्ट्रांग होती है, तो हम इस तरह के सूट्स यानी इस तरह के ड्रेसेस बनाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका पॉलिस्टर। नाउ पॉलिस्टर क्या है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड सिंथेटिक फाइबर्स है, ठीक है, इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, नाम भी आपने सुना होगा। इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर ऑफ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड ईस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो केमिकल सब्सटेंस यूज किए हैं, ठीक है, इट इज अ लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड ईस्टर। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर, ठीक है, तो इट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड टफ, ठीक है, लाइट वेट है, ड्यूरेबल है, डज नॉट गेट रिंकल्ड इजली, ठीक है, इट इज रेसिस्टेंस टू मोस्ट केमिकल, ठीक है, यानी कि बहुत सारे केमिकल का असर इसमें नहीं होता है, इट एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल वाटर, ठीक है, बट ये है कि इसमें जो है ये स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, एंड बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है धूप में अगर हम इसको रखें तो, ठीक है। इट ड्राइज क्विकली, कैन बी डाइड इन वेरियस कलर। ओके, नाउ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ पॉलिस्टर इज पेट, ठीक है, तो पेट का जो है दूसरा फॉर्म ये है कि नहीं, पॉलिस्टर का अनदर फॉर्म है पेट। व्हाट इज पेट? इट इज द पॉलीइथिलीन टेरेफ्थैलेट, ठीक है, पॉलीइथिलीन टेरेफ्थैलेट। इट इज यूज फॉर मेकिंग वाटर बॉटल्स, ठीक है, तो यहाँ पे समथिंग प्लास्टिक्स के जैसा दिखाई देता है, ठीक है, तो वाटर बॉटल्स में है या जार वगैरह बनाने में यूज करते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स आर शैटर प्रूफ एंड चीफ, ठीक है। टेरिलीन जो है वो भी एक तरह का पॉलिस्टर होता है, ठीक है, और वो आपका फैब्रिक्स बनाने में यूज किया जाता है, टेरिलीन क्लॉथ्स फैब्रिक बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। नाउ यूजेज ऑफ पॉलिस्टर का यूज कहाँ करते हैं, सो इसको हम हर तरह से यूज कर सकते हैं, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में फॉर मेकिंग शर्ट्स, ड्रेसेस, सूट्स, कर्टेन, बेडशीट्स, पिलो एक्सेट्रा, ठीक है। इसका यूज हम कर सकते हैं क्योंकि पॉलिस्टर को हम जो है दूसरे फाइबर से भी मिक्स कर सकते हैं, सो पॉलिस्टर कैन बी मिक्स्ड विद अदर फाइबर्स टू प्रोड्यूस अ फैब्रिक हैविंग ब्लेंडेड प्रॉपर्टीज, जैसे कि पॉली कॉटन हो गया, ठीक है, पॉलिस्टर हो गया, पॉलिस्टर, ठीक है। जब पॉलिस्टर कहा जा रहा है तो पॉलिस्टर में आपका ईस्टर जो है वो लगा होगा, पॉली कॉटन उसमें नेचुरल फाइबर्स ऐड करते हैं, ठीक है, एंड कॉटन, पॉली ऊल हो गया, ठीक है, टेरिकोट हो गया, टेरिकोट में हम टेरिलीन और कॉटन जो है उसके साथ मिक्स करते हैं। ओके, सो पॉलिस्टर में हम डिफरेंट फाइबर्स मिक्स करके जो है आपके फैब्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट वन है आपका एक्राइलिक, ठीक है। एक्राइलिक क्या होते हैं, जो ये भी आपका जो है इट हैज अ ऊल लाइक फील, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको जैसे ऊल नहीं होते हैं, वूलन क्लॉथ्स, उस टाइप का जो है आपको फील कराएगा। इट इज एक्चुअली यूज एज अ चीपर अल्टरनेटिव टू ऊल, ठीक है, अगर ऊल की जगह इसको हम जो कि ऊल की जगह इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती है कि इट इज वार्म, ठीक है, इट इज सॉफ्ट एंड लाइट वेट, इट इज ईजी टू वॉश, इट ड्राइज क्विकली, इट इज ईजी टू ड्राई इन वेरियस कलर्स, ठीक है। तो हम जो ऊल के अल्टरनेटिव में इसका यूज करते हैं, ठीक है। इट इज रेसिस्टेंस टू केमिकल्स एंड मोथ्स। यूजेस क्या है, इट इज यूज फॉर मेकिंग स्वेटर्स, क्योंकि ऊल का अल्टरनेटिव है तो स्वेटर्स हैं, शॉल्स हैं, सॉक्स हैं, स्पोर्ट्स वियर बनाने में यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ब्लैंकेट्स एंड रग्स, ठीक है। सो अगर मतलब थोड़ा सा भाई अल्टरनेटिव्स है तो एक्राइलिक जो है वो आपके ऊल के अल्टरनेटिव्स की जगह यूज करते हैं, तो उससे थोड़ा सा चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊल जो होते हैं वो नेचुरल फाइबर से बनते हैं, तो नेचुरल चीजें थोड़ा सा आपकी एक्सपेंसिव होती हैं, उसकी जगह हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि आपने पढ़ लिया है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स थे ना। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स वर्सेस नेचुरल फाइबर्स, ठीक है।
सिंथेटिक फाइबर्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, नेचुरल फाइबर्स में क्या है, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, दे आर यूजुअली स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। याद रखिएगा सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो आपके नेचुरल फाइबर्स से ज्यादा मजबूत होंगे। दे आर जनरली रिंकल फ्री, ठीक है, इनको आयरन की जरूरत नहीं पड़ती है, ओके। दे आर ड्यूरेबल, काफी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, एंड इजी टू मेंटेन। दे डू नॉट एब्जॉर्ब मच वाटर, वो वाटर को जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करते, यानी कि जब हम इनको वॉश करेंगे एंड ड्राई के लिए डालेंगे तो ये इजीली ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। दे आर रेसिस्टेंस टू मोथ्स, ये पे कोई कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। दे कैन बी वॉश्ड इजिली एंड दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स विच डू नॉट फेड ऑन वॉशिंग, ठीक है, यानी यूज करते जाएंगे, कलर इनका। सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट वेयर इन ड्यूरिंग वर्किंग इन लेबोरेटरी एंड किचन, ठीक है। सो जब भी हम किचन में काम कर रहे हो तो हमें सिंथेटिक फाइबर्स यानी सिंथेटिक कपड़े नहीं पहने होना चाहिए, बिकॉज सिंथेटिक फाइबर्स कैन कैच फायर इजिली एंड इट कैन स्टिक अवर स्किन एंड इट मे डैमेज अवर बॉडी, ओके। सो बहुत जल्दी फायर को कैच कर सकता है, ये मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होने के बाद हमारी बॉडी पे स्टिक हो जाएगा और फिर इसको रिमूव करना बहुत प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। सो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो लेबोरेटरी में काम करने वाले वर्कर्स को नहीं पहनना चाहिए और ना ही जो किचन में काम कर रहे हैं उनके लिए, बिकॉज इट कैन कैच फायर easily. Hope you have understood about this, okay. Now in this class we will talk about different types of